Hello everyone, welcome back to our channel. So continuing the series, today we come to our third unit of biology, which is cell structure and functions. I am Akanksha, so let's begin with this unit. So the very first question that you have is identify the correct order of organization of genetic material from largest to smallest. सबसे बड़े से छोटे में आपको organize करना है. So starting with genome, chromosome, gene, nucleotide. See, what is a nucleotide? Your nucleotide is pentose sugar plus nitrogen base plus phosphate group. ये सारे मिलके बनाते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाते हैं आपका जीन. जीन क्या होता है? आपके एक क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट दैट कोड्स फॉर अ सिंगल ट्रेट, दैट इज जीन. फॉर एग्जाम्पल आपका हाइट, स्किन कलर और बहुत सारे जीन्स मिलके बनाता है आपका एक कंप्लीट क्रोमोसोम. सो बहुत सारे जीन्स मिलकर के आपका बनाएंगे कंप्लीट क्रोमोसोम. एंड फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम, 1 पेयर, 22 पेयर्स सेक्स क्रोमोसोम. ये सभी मिलकर बनाते हैं जीनोम. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी न्यूक्लियोटाइड से जीन, जीन से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से जीनोम. दैट इज योर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 2. Question 2 says, which of the following statements about inclusion bodies is incorrect? Inclusion bodies के लिए क्या गलत है? These are involved in ingestion of food particles. Food particles के लिए food vacuole responsible है. हमें incorrect बताना है. They lie free in cytoplasm. This is correct. They represent reserve material in cytoplasm. Again correct. They are not bound by any membrane. True. So your required answer is option A, which is these are involved in ingestion of food particles. Next question, question number 3. Which structures perform the function of mitochondria in bacteria? See, bacteria आपका एक prokaryote है, and prokaryote में membrane bound organelles absent होते हैं. So bacteria में present होता है आपका mesosome. What is mesosome? Mesosome होता है, these are specialized membranes membranous structures, और ये बनते हैं extension of plasma membrane into the सेल. फंक्शंस क्या होते हैं? सी, ये अलग अलग टाइप्स में हो सकते हैं, जैसे आपके वेसाइकल्स, आपके ट्यूब्यूल्स, आपके लैमेले. और इसका फंक्शन हो गया आपका सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, respiration, secretion, enzymatic reactions, enzymatic content. And what does your mitochondria do? Mitochondria perform करता है आपका respiration. So the correct answer will be your option D, which is mesosomes. Moving on to question number 4. Question number 4 says the term glycocalyx is used for. जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 3 कवरिंग्स होती हैं. Innermost is your plasma membrane,
उसके बाद होता है सेल वॉल, देन कम्स योर ग्लाइकोकैलिक्स। फाइन। और ये ग्लाइकोकैलिक्स ये आपके डिफर करता है इनटू कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस, एंड दीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्लाइम लेयर विच इज लूज शीथ, या फिर टफ कैप्सूल, राइट। और ये ग्लाइकोकैलिक्स ये तीनों मिल करके आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फाइन। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, first option is a layer surrounding cell wall of bacteria, second a layer present between cell wall and membrane of bacteria, false, cell wall of bacteria, false, bacterial cell glycoengineered to possess N-glycosylated proteins. See, इसका आंसर आपका first is correct option, a layer surrounding the cell wall. See, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल, और सबसे बाहर आपका ग्लाइकोकैलिक्स. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says, which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cell? यूकैरियोटिक सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं आपके लिपिड्स और रफ बनाएंगे प्रोटीन्स. और जब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स बन जाते हैं, ये जाते हैं आपके गोल्जी बॉडीज में फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर आपका लिपिड्स का पोस्ट ग्लाइकोसाइडेशन होता है और प्रोटीन्स का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है. और ये दोनों प्रोसेस आपके गोल्जी बॉडीज के अंदर होते हैं. सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सेकेंड, विच इज गोल्जी बॉडीज. Moving on to the next question, which is question number 6. Okay, question number 6 is a matching type of question. Synthesis of protein, trap waste and excretory products, formation of glycoproteins and glycolipids, digesting biomolecules. So protein का synthesis वो आपका कहाँ पर होता है? राइबोसोम्स में. वेस्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ये आपके इकट्ठा होते हैं वैक्यूल्स में. ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन योर गोल्जी अपैरेटस. और डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स ये होते हैं आपके लाइसोसोम्स के अंदर. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 7. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर. ओके, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि इसके पास इन दोनों माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों सेल ऑर्गेनल्स के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है. ओके, तो ये अपने खुद के प्रोटीन्स बनाते हैं और अपना खुद का काम करते हैं. दैट इज वाई इट इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल फॉर्म्ड बाय डिविजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन डीएनए, ट्रू, बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. दिस इज फॉल्स. उनके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी प्रेजेंट होती है. सो दिस वन इज ट्रू एंड दिस वन इज फॉल्स. सो आपका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, विच सेज ए इज ट्रू बट बी इज false. Moving on to the next question, which is question number 8. Question number 8 says, select the correct statement from the following regarding cell membrane. Okay, cell membrane में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट बताना है हमें. सोडियम एंड पोटेशियम आयंस मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. रिमेंबर देयर इज दिस सोडियम पोटेशियम पंप, राइट, जो सोडियम और पोटेशियम को मूव करता है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी. सेकेंड ऑप्शन इज
प्रोटीन्स मेकअप टू 60 to 70% ऑफ दी सेल. अगर आप NCERT के डेटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग 52% इज योर प्रोटीन. So this is also false. Lipids are arranged in bilayer. Correct. Lipids are arranged in bilayer with polar heads towards the inner part. No, false. Towards the outer part. ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है and this is the polar hydrophilic part. This faces outside and this lies inside. Last option, fluid mosaic model of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. This is correct. So your correct option will be option D, which is fluid mosaic model of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. Question number 9, which says the Golgi complex plays a major role in digesting proteins and carbohydrates. No, this is the work of lysosomes, क्योंकि सारे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका. इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स. सो दिस इज करेक्ट. Entrapping the light and transforming it into chemical energy. This is the work of chloroplasts. So the correct option will be option C, which is Golgi complex plays a major role in post-translational modification of proteins and glycosidation of lipids. Question number 10. Question number 10 is again आपका matching type. So हम पहले B कॉलम पढ़ेंगे. इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलाकॉइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लैजेला. ऑप्शन ए इज सेंट्रियोल. ओके, सेंट्रियोल बनाता है आपका बेसल बॉडी, सीलिया या फिर फ्लैजेला. इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्रिस्टे बोलते हैं. थाइलाकॉइड्स आपके क्लोरोफिल में प्रेजेंट है. एंड न्यूक्लिक एसिड इज राइबोसाइम. राइबोसाइम इज द ओनली एंजाइम विच इज नॉट अ प्रोटीन बट अ न्यूक्लिक एसिड. सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी option A, right? So moving on to the next question. Next question is, identify the substance having glycosidic bond and peptide bond respectively. See, आपके glycosidic bond ये polysaccharides में होते हैं. Polysaccharides forms glycosidic bond. Polypeptides or proteins, they form peptide bond. और आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं they form ester, diester bonds. एंड आपके लिपिड्स में ईस्टर बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं. फाइन. सो व्हाट इज ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल इज अल्कोहल. राइट. व्हाट इज ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन इज एंजाइम. एंजाइम मतलब प्रोटीन. So protein forms peptide bond. So this is your wrong option. Cellulose. Cellulose is a carbohydrate. मतलब it is a polysaccharide, right? So glycosidic bond is present in polysaccharide. ये correct होना चाहिए. But what is lecithin? Lecithin ये आपका lipid है, right? And since lecithin is your lipid, which is also especially a phospholipid. So wrong option. Inulin is fructose का polymer. That means it has a glycosidic bond. And insulin is your protein because which enzyme is so peptide bond.
So this has to be the correct option. So option C is your correct answer. The next question, which is question number 12, which says the two polypeptides of human insulin are linked together by. So आपका जो human insulin है, this is made up of 3 chains of amino acids, A chain, B chain and C chain. A chain में आपके 21 amino acids होते हैं and C chain has 30 अमीनो एसिड्स. और ये ए और सी चेन ये आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से जुड़े हुए होते हैं. सो दीज टू पॉलीपेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन्स, मतलब अमीनो एसिड्स का एक चेन, ये आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन 13, which says which of the following organic compounds is the main constituent of lecithin. What is lecithin? Lecithin ये आपका एक लिपिड है और important क्या है इस लिपिड के बारे में? It is a phospholipid, मतलब इसमें एक phosphate group भी attached है. ये बेसिकली डेटा है एनसीईआरटी का, आपको ये याद ही करना पड़ेगा. एंड देयर इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन गिवन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. सो प्लीज ओपन योर एनसीईआरटीज एंड मेमोराइज दैट वेरी diagram. So the correct option is option C, which is phospholipid. Question number 14, which says a phosphoglycerate is always made up of. Phosphoglycerate मतलब phosphate group plus glycerate. What is glycerate? Glycerate बना होता है आपका long chain of fatty acids. These can be made up of saturated or unsaturated, both. या तो saturated या unsaturated, किसी से भी बना हो सकता है. Hydrocarbons, and these fatty acids, they are esterified to glycerol molecule. So the correct option should be option A, only an unsaturated fatty acid. ये यहीं पर गलत हो गया. A saturated or unsaturated fatty acid, which is correct. Esterified to a glycerol, again correct, molecule which is to which a phosphate group is also attached. So this has to be your correct option. So option second is your correct answer. Moving on to the next question. The next question is, given below is the diagrammatic representation of one of the categories of small molecular weight organic compound in the living tissues. Identify the category shown and one blank component X in it. Okay, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी नंबरिंग इस शुगर की, दिस इज अ पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर की नंबरिंग हम करेंगे अगर, सो दिस इज 1' कार्बन, दिस इज 2' कार्बन, दिस इज 3' कार्बन, 4' कार्बन एंड दिस इज द 5' कार्बन. और जो आपका 2' कार्बन है इसमें आपका OH अटैच्ड है. दिस मीन्स दिस इज अ राइबोज शुगर, राइट. और अगर ये राइबोज शुगर है तो दिस हैज टू बी यूरासिल, न्यूक्लियोसाइड. ओके, अब आप कैसे बताओगे कि ये न्यूक्लियोसाइड है? न्यूक्लियोटाइड नहीं, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट है. फॉस्फेट ग्रुप इज एब्सेंट, सो दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड. अगर आपका फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर 5' पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप होता तो दिस शुड हैव बिकम अ न्यूक्लियोटाइड. और 1' पोजीशन में आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच करता है. सो दिस हैज टू बी यूरासिल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोएंजाइम्स. ओके, जो आपके एंजाइम्स होते हैं उसको हम बेसिकली होलो एंजाइम बोलते हैं. दिस होलो एंजाइम इज फॉर्म्ड फ्रॉम एपो एंजाइम प्लस cofactors, and these cofactors are basically of 3 types. आपका एक prosthetic group, आपका coenzyme and your metal ion.
सो ये भी ऑर्गेनिक होता है आपका, दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये आपका एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है, एंड दिस वन इज लूजली बाउंड, या फिर ट्रांजिएंटली कुछ समय के लिए ही बाउंड करता है टू एपो एंजाइम। सो ऑप्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सेज दे कैन सर्व एज कोफैक्टर्स इन अ नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये तो दोनों काम कर सकते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दे रिक्वायर मेटल आयंस, नो, मेटल आयन एक अलग से कोफैक्टर है। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 which says select the option which is not correct with respect to enzyme action. Okay, enzyme action से related क्या correct नहीं है? What is false? Substrate binds with enzyme at its active site. This is true, बिल्कुल सही बात है ये। Second option, addition of lot of succinate does not reverse the inhibition of succinate dehydrogenase by malonate. नोट करेंगे कि आपका जो ये मैलोनेट है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ये आपके एक्टिव साइट से ही आकर बाइंड करते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे इसमें सक्सिनेट तो मैलोनेट का इनहिबिशन इसका रिवर्स हो जाएगा। सो दिस इज रॉन्ग। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट ये रिवर्स कर देगा इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। जितना ज़्यादा आप उसको ऐड करेंगे सक्सिनेट को वो उतना ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए। सो दिस हैज़ टू बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट्स कंसिडर करने और ट्रू फॉल्स बताना है। कोएंजाइम या मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, करेक्ट, जस्ट अभी हमने पढ़ा। अ कंप्लीट catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. No, it is called holoenzyme. So first is true, second is false. So the correct answer will be option B. Question number 20 which says which one of the following is non-reducing sugar, non-reducing carbohydrate? See, non-reducing होने के लिए एक कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग कब होता है? जब उसके पास एक फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट हो, राइट। सो अगर माल्टोज ये आपका 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है, मतलब आपके जो सेकेंड शुगर है उसमें फ्री OH अवेलेबल है, दैट मीन्स इट इज रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है, लैक्टोज 1,4 बनाता है, एंड राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज में 2' में OH प्रेजेंट होता है विच मेक्स इट अ रिड्यूसिंग कंपाउंड। सो आपका करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सेकेंड विच इज सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज, मतलब गैप 1 फेज ऑफ इंटरफेज के लिए क्या करेक्ट है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कॉम्पोनेंट्स टेक्स प्लेस। ये सारे कॉम्पोनेंट्स ये आपके M फेज के आखिरी स्टेज में, लास्ट स्टेज में होते हैं। Cell is metabolically active, grows but does not replicate its DNA. This is the correct option. Option second is the correct option. Moving on to the next question, which is question number 24, which says which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? Okay, हम इसमें options read करते जाएंगे and the moment हमें गलत response मिल रहा है हम उसे क्रॉस करके नेक्स्ट ऑप्शन में बढ़ जाएंगे। सो सबसे पहला है, सबसे पहले कंडेंसेशन होता है, करेक्ट।
कंडेंसेशन के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअसेंबली हो जाती है, अगेन करेक्ट। अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर में अरेंज कर जाते हैं। उसके बाद सेंट्रोमेयर का डिविजन हो जाता है एंड देन सेग्रीगेशन टेक्स प्लेस एंड फाइनली टीलोफेज। सो आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू, ओके, जो क्रोमोसोम होता है इसमें ये आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को सेंट्रोमेयर बोलते हैं और इस सेंट्रोमेयर में डिस्क शेप्ड काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज डिस्क शेप्ड काइनेटोकोर्स यहीं पर आपके आकर स्पिंडल फाइबर्स ये अटैच करते हैं। So the correct answer is kinetochore of chromosome. Okay, so this is a repeated question. Next question. Crossing over takes place between which chromatids? ओके ये कुछ बहुत ही बेकार सा बन गया है, दोबारा बनाते हैं। ओके ये आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। क्लियर नहीं समझ आ रहा है तो लेट मी कलर इट अ बिट। आई थिंक अब क्लियर है। ये दो क्रोमोसोम्स हैं जो आपके इक्वेटर में आकर पेयरिंग्स उन्होंने कर लिए, राइट। सो क्रॉसिंग ओवर ये आपकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है एंड दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये दोनों क्रोमोसोम्स आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी non-sister chromatids of non-homologous chromosome, false. Non-sister chromatids of non-logous chromosomes, false. Non-sister chromatids of homologous chromosomes at pegitine stage of prophase 1. So this is your correct answer. Question number 28. Choose the correct option for the following events. Okay. एक correct sequence में आपको लगाना है, fine. Synapsis, crossing over, synapsis, terminalization of chiasmata and disappearance of nucleolus. So सबसे पहले आपकी synapsis होगी, synapsis के बाद crossing over, उसके बाद terminalization and finally आपका nucleolus disappear कर जाएगा, prophase 1 complete हो जाएगा. So your correct option should be B to A, A to C, C to D. That is option A. Question number 29. The stage during which separation of paired homologous chromosome begins. कहाँ पर separation of paired homologous chromosome की शुरुआत होती है, separation की शुरुआत होती है. So basically आपकी प्रोफेज 1 ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड लास्टली इज डायाकाइनेसिस. यहाँ पर सेपरेशन बिगिंस. क्यों बिगिंस? बिकॉज जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है
वहाँ पर अटैच रह जाते हैं, उसके अलावा हर जगह से सेपरेट कर जाते हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन की शुरुआत हो जाती है। एंड फाइनली डाइकाइनेसिस में आपके पूरे क्रोमोसोम्स, जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ये कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हैज़ टू बी ऑप्शन बी, विच इज़ डिप्लोडीन। And the last question for today is, during gamete formation, the enzyme recombination participates during pachytene of prophase 1, right? So the correct option is option C. So we come to the end of this session again. थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोट्स के लिए हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।